ہوتا تو جو آج سے 100 سال پہلے پیدا ہوئے وہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے، لیکن 100 سال پہلے جو پیدا ہوئے آج نہیں ہیں۔ تو یہ بھی سچ ہے کہ جو آج ہیں وہ 100 سال کے بعد نہیں رہیں گے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ 100 سال کے اندر کی ہی ہماری اور آپ کی کہانی ہے، چاہے 10 دن میں مر جائیں یا 10 سال میں مر جائیں یا 70 سال میں مر جائیں یا 80 سال میں مر جائیں، تو 100 سال کے اندر ہی ہماری ساری تاریخ ختم ہو جاتی ہے، ہم لوگ مٹ جاتے ہیں، ہماری ہڈیاں قبر میں گل جاتی ہیں، ہمارے بال بچے ہمیں بھول جاتے ہیں اور کوئی نام و نشان ہمارا نہیں رہتا۔ اسی گاؤں میں کتنے لوگ آئے آج 1000 سال کے اندر، کتنے لوگ آئے، مگر کس کو لوگ جانتے ہیں؟ سبھوں کو لوگ یاد نہیں کرتے، جو صرف آئے، پیدا ہوئے، کمایا، کھایا، گھر بنایا، گاڑی خریدا، مر گیا، اس کو تو صرف چہارم اور برسی تک ہی لوگ یاد رکھتے ہیں، اس کے علاوہ لوگ یاد نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ سرکار غوث اعظم آج 1000 سال ان کے ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے وصال کے 1000 سال ہو گئے۔ ان کا گاؤں تو چھوڑیے، جیلان جہاں آرام کر رہے ہیں، اس بغداد کو تو چھوڑیے، آج دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو اپنے نام کے ساتھ لفظ قادری لگانے کا فخر اور غوث پاک کی محفلیں گھر گھر میں منعقد ہوتی ہیں۔ آخر کیا ہے؟ ہمارے اس گاؤں میں 1000 سال میں لاکھوں لوگ پیدا ہوئے، مر گئے، کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ پوری دنیا میں لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں روزانہ اور مرتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا نام بھولایا نہیں جاتا۔ ہمارے دادا کی قبر کہاں ہے نہیں معلوم ہے، آپ سبوں سے میں پوچھوں کہ آپ کے پردادا کی قبر کہاں ہے نہیں معلوم، مر گئے، چلے گئے، کہانی ختم ہو گئی۔ زیادہ غم اگر لے کے ڈھوئیں گے آپ مرنے والوں کا تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب لوگ اپنے رشتہ داروں کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو قبر کی مٹی اٹھا کر کے لوگ فرشتے رشتہ داروں کے چہرے پہ ڈال دیتے ہیں، اور اس مٹی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو دفنانے سے پہلے سینہ پیٹتے تھے، سر کے بال نوچتے تھے، دفن کرنے کے بعد جب مٹی فرشتے اٹھا کے پھینکتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں ان کو، اللہ 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 اللہ، وہاں سے گھر لوٹنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ میری کوئی ماں تھی، بھول جاتے ہیں میرا کوئی باپ تھا، ورنہ لگ رہا تھا کہ اس کا غم سے سینہ پھٹ جائے گا، یہ زندہ نہیں رہ پائے گا، لیکن 10 دن کے بعد پھر وہ کاروبار میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ لگتا نہیں کوئی باپ اس کا مرا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں اپنے والد کو بھول گیا، میں اپنے دادا کو بھول گیا، ان کی قبر پہ کبھی نہیں جاتے، جبکہ فضیلت آئی ہے کہ ہر جمعہ کے دن جو ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کی قبر پہ حاضری دیتا ہو، اللہ اسے فرما بردار بیٹوں کی جماعت میں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے اگر زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں کوتاہی کی کسی وجہ سے ہو، مگر بعد وصال اگر ان کی قبر پہ بار بار وہ حاضری دیتا رہا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اس خطا کو معاف کر دے گا اور ان کے باپ کی روح کو ان کی طرف سے راضی کر دے گا، اور باپ کے دوستوں سے جو حسن سلوک کرے گا اور باپ کی وصیت کو جو پوری کرے گا، اللہ اسے فرمانبردار بیٹوں میں شامل فرما لے گا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو ہر جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں؟ ایک گاؤں میں 1000 کی آبادی ہے، بمشکل تمام 1-2 لوگ جاتے ہوں گے۔ کیا کہیں زیادہ ماحول اچھا ہے تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان اگر نزدیک ہے تو 10-20-50 لوگ چلے جاتے ہوں گے، صرف جمعہ، وہ بھی مرنے کے 2-4 سال تک، اس کے بعد تو ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی۔ آخر ہم لوگ اپنے باپ داداؤں سے زمین پاتے ہیں، مکان پاتے ہیں، بہت ساری دولتیں پاتے ہیں، اس کے باوجود ان کو بھول جاتے ہیں، ان کی قبر پہ حاضری نہیں دیتے، ان کی قبر قبرستان میں کہاں ہے ہم نہیں جانتے۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ غوث پاک کی قبر کہاں ہے، بچہ بولے گا بغداد۔ اگر کہا جائے کہ خواجگان فخر ہندوستان کی قبر کہاں ہے تو بچہ بولے گا اجمیر معلی میں ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ سرکار جنید بغدادی کی قبر انور کہاں ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا پھر جو مذہب اہل سنت و جماعت کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، خطابات سنتے ہیں، تو وہ بولیں گے بغداد معلی میں ان کا مزار پاک ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے تو بغداد معلی میں ہے۔ اگر پوچھا جائے بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کہاں ہے تو آپ بولیں گے ایران میں۔
اور اعلیٰ حضرت کی قبر انور کہاں ہے تو آپ بولیں گے کیا کہنا مرکز اہل سنت و جماعت بریلی شریف پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 100 سال پہلے، کوئی 1000 سال پہلے جا چکے، لیکن ہزاروں نہیں کروڑوں زبان پر ان کا چرچا ہے۔ ان کی قبر پہ لوگ 1-1 لاکھ روپے خرچ کر کے حاضری دینے جاتے ہیں۔ سید صاحب بھی گئے ہوں گے بغداد معلیٰ، اگر نہیں گئے ہوں گے تو پھر چلے جائیں گے۔ اور الحمدللہ میں بھی ایک بار غوث پاک کے مزار پہ حاضری میں نے دیا، سبحان اللہ۔ بغداد معلیٰ جب گیا تو ایسا لگا کہ مدرسے پہ جان دے دوں، کیونکہ غوث پاک نے کہا ہے کہ جو میرے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے وہ جنتی ہے، سبحان اللہ۔ جو میرے مدرسے میں پڑھ لے وہ جنتی ہے، جو میرے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے وہ جنتی ہے۔ اللہ توفیق دے، اللہ پیسہ دے تو بغداد جاؤ اور غوث پاک کا مزار وہی ہے جو ان کا پرانا مدرسہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں جاؤ۔ غوث پاک کی قبر پہ حاضری دینے میں 1 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے خرچ کر کے ہم اور آپ تو کبھی کبھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو بغداد جاتے ہیں۔ میں جب گیا وہاں کہا کہ حضرت پاکستان سے ایک پیر صاحب ہیں، وہ اپنے 150-200 مریدوں کے ساتھ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو یہاں آتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اب آپ بولیں گے کہ پیسہ کہاں سے لائیں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا، وہ سب دل کی بات ہے، دیوانوں کی بات ہے۔ مفلسی میں بھی مدینے کا سفر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس بہت پیسے والے بیٹھے رہتے ہیں، نہیں جا پاتے ہیں، اور فقیروں کی ایسی دنیا آباد ہے کہ بار بار مدینے پاک کی حاضری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سید صاحب کا اقبال بلند فرمائے۔ آمین۔ میں کہہ رہا تھا کہ پیسے کی کوئی بات نہیں ہے، ورنہ عرب پتی مدینہ نہیں جا پائے۔ وہ لندن گئے، برٹن گئے، فرانس گئے، جرمنی گئے، ناروے گئے، کینیڈا گئے، مگر مدینہ نہیں جا پائے۔ کیوں نہیں گئے مدینہ؟ سب نہیں جاتے ہیں مدینہ، وہی جاتے ہیں جنہیں مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ بس صرف سچی طلب ہونی چاہیے، دل کی گہرائی سے طلب ہوئی، ادھر طلب ادھر مدینے سے بلاوا آ جاتا ہے۔ میرا ایک بھانجا تھا، اس نے بولا کہ آپ تو مدینہ پاک سے واپس آ گئے، کیا آپ کی اہلیہ بھی چلی جائیں گی، کیا آپ کے بچے بھی چلے جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے سبوں کو درود رضویہ پڑھنے کی تاکید کر دی ہے۔ میں نے اپنی اہلیہ سے بولا ہے کہ پابندی سے ہر جمعہ کے دن 100 بار پڑھنا، اور اللہ توفیق دے تو ہر دن فجر کی نماز کے بعد 100 بار درود رضویہ پڑھنا، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جو سچے دل سے اس کا عامل ہوگا، جنت تو وہاں ملے گی، مدینے کی حاضری یہاں ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بالکل تجربہ ہے اس کا، بالکل تجربہ ہے اس کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی اہلیہ بھی چلی جائے گی؟ میں نے کہا میں نے ان سے درود پڑھنے کے لیے کہہ دیا ہے، حضور چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ اور دیکھیے کچھ ہی دن کے بعد ترکیب بنی، میں اپنی وائف کے ساتھ مدینہ چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کہاں مدینہ، اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا، حج کرنے میں 4 لاکھ لگتے ہیں، وہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ جب بلاوا آتا ہے تو انتظام خود بخود ہو جاتا ہے۔ پہلے 10 بیگھہ زمین بیچ کے لوگ حج کرنے جاتے تھے، اور آج 1 کٹھا بیچ کر میاں اور بیوی دونوں حج کر لیتے ہیں۔ آج پہلے 10 بیگھہ زمین بیچتے تھے لوگ، آج سے 50-100 سال پہلے 10 بیگھہ زمین، پھر بھی حج کا پیسہ نہیں ہوتا تھا، اور ابھی صرف 1 حصہ زمین کوئی بیچ دے تو 10-20 لاکھ روپے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صرف دل دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ ماشاءاللہ۔ Allah does not look at your face and your wealth۔ اللہ تمہارے چہرے اور تمہاری دولتوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ sees your hearts، اللہ sees your intention، اللہ sees your deeds، اللہ sees your action۔ اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ نیت کیسی ہے؟ نیت صرف ستھری رہے، سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آج وہی نیت ہی گندی ہو گئی ہے، نیت ہی گندی ہو گئی۔ ابھی ایک میسج آیا میرے پاس کہ بجنور میں ایک مولوی صاحب نے ڈی جے والا نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ ان کو لوگوں نے اتنا پیٹا کہ زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، گھر کے کئی لوگوں کو مار پیٹ کر دیا، سر پھٹ گیا پورا۔ وہ مولوی بولا کہ میں وہ نکاح نہیں پڑھاؤں گا جس میں ڈی جے بجتا ہو، اور دوسرا مولوی کو منع کیا کہ تم بھی مت پڑھاؤ، تاکہ یہ توبہ کر لے اور ڈی جے چھوڑ دے۔ یہ مولوی چاہتے تھے کہ وہ جنت چلے جائیں، مگر وہ سارے جہنمی مل کے جنتی کی پٹائی کر دی۔ اس طرح بے حیا اور بے شرم ہو گئے۔
حد درجہ گر گئے لوگ ان لوگوں کی لاش کو کتے نوچ کے کھائیں گے۔ بہت اچھے حضرت، بہت اچھے۔ جو لوگ اپنے عالموں، اپنے مولویوں، اپنے ائمہ کو، حق بتانے والوں کو اس طرح پٹائی کرتے ہیں کہ بتائیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا اس کا۔ یہاں تو ہے کہ چلو ہم نہیں عمل کرتے ہیں، کم سے کم جو حق بولتا ہے اس کو مانتے ہیں۔ چلو حضرت صحیح بول رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے۔ میں نماز چھوڑتا ہوں، حرام کام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا۔ مگر یہ بات بڑی سچی بول رہا ہے، اور جو حق بولنے والے کی پٹائی کر دے تو سمجھ لیں کہ ممکن ہے کہ اس کی موت حالت کفر میں ہو جائے، بہت اچھے حضور، بہت اچھے۔ اس کی موت حالت کفر میں ہو جائے۔ اذان کی توہین کر اذان کا جواب دینا ضروری ہے، اور اذان کے وقت میں جو دنیا کی بات کرے آیا ہے کتاب میں کہ ہو سکتا ہے اس کی موت حالت ایمان میں نہ ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ جو عالموں کی توہین کرتا ہو ممکن ہے کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف سے اللہ پھیر دے۔ سرکار غریب نواز کے ملفوظات میں ہے کہ ایک شخص مرنے کے بعد گھر والوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے، مگر جیسے ہی گھماتا تھا پھر رخ پھر جاتا تھا۔ کئی بار انہوں نے ٹرائی کی، آواز ہاتف غیبی سے آئی چاہے جتنی کوشش کر لے اس کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ زندگی میں جب بھی عالموں کا چہرہ دیکھتا تھا تو نفرت سے اپنا چہرہ موڑ لیتا تھا۔ معاذ اللہ صدبار معاذ۔ عالم دین نائب پیغمبر ہوتے ہیں، عالم دین اپنے باپ اور اپنی ماں کا خطبہ نہیں پڑھتے، وہ جمعہ کے دن ممبر پہ چڑھ کے رسول پاک کی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ممبر پر بیٹھ اگر میں اپنی ماں اپنے باپ کی تعریف کروں تو 10 منٹ تم برداشت نہیں کر پائے گا، بھگا دے گا اسٹیج سے، مگر میں 5-5 4-4 گھنٹے خطاب کرتا ہوں اور پبلک سنتی ہے، اس لیے کہ باپ کی نہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو عالم دین کا وقار اسی لیے ہے کہ عالم قرآن کی بات بولتا ہے، عالم حدیث بولتا ہے، عالم مصطفیٰ کی سیرت بیان کرتا ہے، اور یہ عالم ہمارا دشمن نہیں، یہ عالم دین یہ ہمارا خیر خواہ، ہمارا دوست ہے جو ہمیں جہنم سے بچا کر کے جنت لے جانا چاہتا ہے۔ یہ عالم مصطفیٰ کی بات دہراتا ہے کہ حضور نے کہا تھا ان کفار و مشرکین سے کہ میرا حال یہ ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر میں تمہیں جہنم میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں، اور تمہارا عالم یہ ہے کہ تم زبردستی آگ میں کودنا چاہتے ہو۔ اللہ اللہ۔ حضور کہتے ہیں کہ میں تمہاری کمر پکڑ کے تم کو آگ میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں، اور تم ہو کہ اسی آگ میں گرنا چاہتے ہو۔ یہی حال حضور کے نائبین علماء کا ہے۔ یہ جمعہ کے دن شراب کی مذمت کر کے، سود کی مذمت کر کے وہ چاہتا ہے کہ سماج سود سے پاک ہو جائے، کیونکہ جس قوم میں سود کا کاروبار زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کے لوگوں کو بزدل بنا دیتا ہے، اس پر ظالم حاکموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ عالم ہمیں کہتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سود کھانے کے جتنے بھی درجے ہیں گناہ کے 70 درجے، اس میں سے ادنا درجہ یہ ہے کہ این کا ہر رجل امہ، یہ کہ ایک آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے یعنی زنا کرے، ادنا درجہ ہے۔ سود کے گناہ کے 70 رینک ہیں، اس میں سے ادنا رینک یہ ہے کہ ایک مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ جس کے سینے میں غیرت ہوگی اس طرح کی باتیں سننے کے بعد وہ کبھی سود نہیں کھائے گا۔ مگر کچھ لوگ ہیں کہ جو نشے میں بہے جاتے ہیں، اسے صرف دولت بڑھانا اس کا مقصد ہے، دولت بڑھے، جبکہ ان پاگلوں کو معلوم ہے کہ 100 سال پہلے 1,000 بیگھہ زمین کے جوتنے والے لوگ تھے، آج ان کی قبر پہ کتا چل رہا ہے، آج ان کی قبر پہ جانور پیشاب کر رہے ہیں، آج ان کی قبر کا نام و نشان مٹ گیا۔ ہمارے علاقے میں بہت سارے سیٹ تھے جس کے گاؤں کو اسٹیٹ بولا جاتا تھا، یہاں اسٹیٹ لوگ رہتے ہیں، آج ان کی قبر کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، ان کے بال بچوں کو معلوم نہیں ہے، وہاں جانور چلتے ہیں، کتے بلی پیشاب پخانہ کرتے ہیں۔ مگر جن لوگوں نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ان کی قبروں کو بھی دیکھا ہوگا۔ دلی میں 22 خواجاؤں کی چوکھٹ، ان آستانوں پہ حاضری دے دے، وہاں بلی نہیں چڑھتا، وہاں گلاب کا پھول چڑھایا جاتا ہے، وہاں چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ شاہ یوسف صاحب انہی لوگوں کی کڑی میں سے ایک کڑی ہے، ان کی قبر پہ کتا نہیں چڑھتا، ان کی قبر پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ان کی قبر پہ گلاب چڑھایا جاتا ہے تاکہ جان لے کہ جو زمیندار تھا دیندار نہیں تھا، اس کی قبروں پہ جانور چڑھتے ہیں، اور جو زمیندار نہیں تھا دیندار تھا ان کی قبروں پہ فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، وہاں چادریں چڑھتی ہیں، گلاب چڑھایا۔
10,000 बीघा जमीन जोतने वाले जब आज नहीं रहे, उनका बच्चा रेडी चला रहा, उनका बच्चा रिक्शा चला रहा, उनका बच्चा बम्बई के हाजी अली के इलाके में चश्मा और बच्चों का खिलौना बेच रहा, उनके बच्चे बस का कंडक्टर बनकर बस का टिकट बेच रहे हैं, और जो हमारे घर में गाय चराता था वो आज करोड़ों और अरबों में खेल रहा है। इसलिए पैसों और दौलतों की कोई हैसियत नहीं है। ये दौलत के नशे में चूर आलिमों की बेकदरी करते हैं, दौलत को बढ़ाने के लिए तमाम उसूल और ज़ाब्ते का खून करते हैं। आप ये जान लें कि अल्लाह तबारक व तआला ही इज्जत देने वाला, वही जलील करने वाला, वह जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। अल्लाह तबारक व तआला ही सब कुछ करता है। ये बंदे की हैसियत क्या है? ये बंदा एक नापाक कतरे से पैदा हुआ, इस बंदे के पेट में हमेशा 2 केजी पखाना रहता है। चाहे आप इमाम साहब रहें कि साहब आप प्रधानमंत्री रहें, चाहे कोई भी रहे, मौलाना रहे कि कोई भी रहे, मगर पेट में गलाजत रहती है। और इस्तिंजा लगने के बाद हमें बाथरूम जाना पड़ता है, और बाथरूम में हम अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों, अपने मुख्तदियों और अपने नौकरों के साथ नहीं जाते कि चलो मेरा पेशाब पखाना साफ कर देना। नहीं, वह बेहयाई की इंतहा हो जाएगी। चाहे पीर साहब रहे, चाहे प्रधानमंत्री साहब रहे, उसे बाथरूम में अकेले जाना पड़ता है, और वो अपना पखाना खुद अपने हाथ से उनको धोना पड़ता है। ये बताएं कि जो दूसरों को कहता था यह मेहतर है, ये साहब दूसरों का पखाना ढोता, उसकी क्या औकात है? हर आदमी को अपना पखाना साफ करवाया जाता है ताकि जब दिमाग में तुझे बसे कि मैं कुछ हूं, मैं जमींदार, मैं पत्नीदार, मैं प्रधानमंत्री, मैं प्रेसिडेंट, मैं 50 बीघा जमीन का जोतने वाला, 50 फैक्ट्री का मालिक, तो बाथरूम में अपना पखाना धोना याद कर लेना ताकि पता चल जाए कि तुझ में और मेहतर में क्या फर्क है। गुरूर को मिटाने के लिए अल्लाह ने पेशाब पखाना को हमारे साथ लगा दिया है ताकि जब भी दिमाग में लगे कि मैं कुछ हूं तो अपना पखाना साफ करना याद कर लेना, तेरा सारा गुरूर चूर हो जाएगा, तेरा सारा तकब्बुर मिट जाएगा, पता चल जाएगा तेरी औकात क्या है। तो अल्लाह ने पेशाब पखाना और नींद देकर हमें कमजोर बनाया है कि तू कमजोर है, कभी ताकतवर बनने की कोशिश मत करना, ताकि तुम इन तमाम पहलू पे नजर डालेगा कि पेशानी सजदे में डाल के बोलेगा, इलाही मैं बंदा हूं, तू खुदा है, मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, मैं अब्द हूं, तू माबूद है, मैं साजिद हूं, तू मौजूद है, मैं कुछ नहीं हूं मेरे खुदा, तू ही सब कुछ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत पैगाम सरकार मुफ्ती शेर नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दिल जिसका जिंदा है वही आदमी है, जिसका दिल मर गया हो मुर्दों से बदतर है। आज लोगों के दिल मर गए, इसीलिए दौलत चाहिए, चाहे माँ से जिना करने के बाद दौलत मिले मगर दौलत चाहिए, क्योंकि सूद खाना का 70 गुना है, उसका अदना दर्जा है माँ से जिना करना। मगर लाखों लोग हैं जो सूद का कारोबार कर रहे हैं। ये हमारी माँ बहन बेटियां भी दूसरों के बहकावे में सूद का कारोबार कर रही है, वो साहब ग्रुप चला रही है, सूद का कारोबार कर रही है, सिर्फ चंद पैसा जमा करने के चक्कर में। ये दुनिया जलील है, अल्लाह जलीलों को ज्यादा देता है। और दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, हदीस में आया है कि ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। जैसे मरी हुई बकरी को कोई इंसान नहीं खाता, कुत्ता खाता है, उसी तरह से हदीस में आया है कि ये दुनिया मिस्ल मुर्दार के है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। कौन? जो नमाज रोजा छोड़ के पैसा कमाए, जो हज व ज़कात छोड़ के पैसा कमाए, जो जन्नत की फिक्र छोड़ के पैसा कमाए, जिसका मजहब सिर्फ पैसा कमाना हो, उसकी मिसाल कुत्ते की है जो मुर्दार पे रीझ रहा है। अब दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। मोमिन, कभी इन काफिरों की दौलतों पे ललचाई निगाह से मत देखना, उनकी गाड़ी को मत देखना, उनकी जमींदारी को मत देखना, उनकी सल्तनत को मत देखना, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलील दुनिया को जलीलों को ज्यादा देता है, अपने महबूब के गुलामों को इस दुनिया से बचाता है। तुम्हें मस्जिद तुम्हारी वीरान हो गई जबकि मस्जिद तुम्हारा मरकज है। कहीं मुसलमान नजर आए ना आए, मस्जिद में नजर आए। ये मस्जिद हमारा सेंट्रल प्लेस है, मरकज है, जहां जुमा के दिन वाज होता है, जहां नमाज़े पंजगाना बाजमात होती है, जहां आलिम दीन खिताब करके हमें दीन सिखाते हैं। मस्जिद ही हमारी कोर्ट और कचहरी है। उसी मस्जिद नबवी से मुस्तफा फैसला फरमाते हैं,
उसी मस्जिद नबवी से जुमा के दिन मुस्तफा खिताब फरमाते थे। उसी मस्जिद नबवी में जब जब हुजूर ने चाहा मिंबर पे खड़े होके कभी 12-12 घंटे का खिताब किया है। नहीं सुनी तुमने वो हदीस की मुस्तफा फजर की नमाज के बाद फारिग होने के बाद मिंबर पे चढ़े खिताब किया हत्ता हजरत ज़ोहर, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त आ गया, सरकार मिंबर से नीचे उतरे, नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर चढ़े, खिताब किया यहाँ तक कि असर, और आपने खिताब किया हत्ता गरबती शम्स, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। फजर की नमाज से लेकर सूरज के डूबने तक लंबा खिताब, 16-16 घंटे 15-15 घंटे होते हैं मुल्क अरब में, वहां लंबा लंबा दिन होता है। अब वहां 15-15 घंटे खिताब मुस्तफा के इस हदीस पाक की रोशनी में, तो मस्जिद नबवी हमारा मस्जिद नबवी से वहीं से सारी मस्जिदों का रिश्ता जुड़ा है। तो हर मस्जिद हमारे लिए मरकज है। मस्जिद से खिताब होगा, मस्जिद में गुफ्तगू होगी, मस्जिद में फ्यूचर के प्लान बनाए जाएंगे, मस्जिद में दुनिया की बात नहीं होगी, मस्जिद में सिर्फ आखिरत की बात, मस्जिद में सिर्फ इबादत होगी, मस्जिद में सजदा होगा, मस्जिद में कौम की हिफाजत का पहली बयान किया जाएगा। इसलिए मोमिन कहीं नजर आए ना आए, मस्जिद में नजर आए। कहा गया है किताब में कि अल मोमिनो फिल मस्जिद का समक फिल्मा, मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मछली जब तक पानी में है तरार है, झूमती है, खेलती है, लेकिन जैसे ही पानी से निकाल दे मछली तड़प तड़प के मर जाती है। उसी तरह मोमिन का रिश्ता जब तक मस्जिद से जुड़ा था, ये गरीबी में भी बादशाहत करता था, या जमीन पे रह के बादशाहों के दिनों पे शासन करता था। वह खजूर खाने वाला मदीने का, खाना बदोश मदीने के, बकरी के चराने वाले अरब के, अरब में खेती बाड़ी नहीं होती थी, वहां के लोग बकरी चराते थे। अरब में खाना बदोश लोग थे, अपने घर को कांधे पर रखते थे, जहां गया तंबू गाड़ा, रात गुजारी, फिर सुबह हुई खूटा उखाड़ा, तंबू कांधे पे लिया, चल दिया। ये खाना बदोश लोग थे जिसका घर कांधे पे होता था। वो खेती बाड़ी नहीं, वहां बकरी चराते थे, वह लोग तिजारत करते थे, वह खजूरों की का कारोबार करते थे। खजूर खाने वाला, कई कई दिन तक भूखा रहने वाला, ऊंट चराने वाला, वो ईरान की सल्तनत को उखाड़ के फेंक दिया। 1000 साल तक ईरान पे मजूसियों की सल्तनत थी, मगर यही खाना बदोश, यही खजूर खाने वाले, यही बकरी के चराने वाले, यही ऊंट चराने वाले मुस्तफा की निगाह इनायत से, अल्लाह की ताईद और नुसरत से ईरान की 1000 साला मजूसियत की बुनियाद उखाड़ के इस्लाम की सल्तनत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह समद, अल्लाह का वादा है कि तुम नेक बनोगे, मैं तुम पर रहमतों की बारिश कर दूंगा, तुम जन्नत के तलबगार होगे, मैं तुझे दुनिया भी दे दूंगा। तुम मोमिन बन जाओ मेरे महबूब का गुलाम, सिर्फ घर मकान नहीं देंगे, तुम्हें बादशाहत दे देंगे, सल्तनत दे देंगे। आज हम जलील और रुस्वा हो गए, काफिरों से बदतर हम दौलतों की हवस में हो गए। ये काफिर तो मेहनतें 8-8 घंटे करता है, मगर मैं चाहता हूं कि डकैती करके मैं मालदार बन जाऊं, मैं चाहता हूं चोरी करके मालदार हो जाऊं, मैं चाहता हूं दूसरों की जमीन हड़प के मैं मालदार हो जाऊं, मैं चाहता हूं मैं निकम्मा बेरोजगार बैठ बैठ के दौलतों के बारे में सोचता रहूं और दौलत मेरे घर में आ जाए। वो तो मेहनत करके कमाता है और हम तो मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मालदार बन जाए। जन्नत की तलब में सिर्फ दुनिया की तलब है, इसलिए हम रुस्वा हो गए। जो अपने घर के बारे में सोचेगा, जो अपनी औलाद के बारे में सोचेगा, जो सिर्फ अपने खाने कपड़े के बारे में सोचेगा, अल्लाह उसे जलील कर देगा। मैंने कहा था ना कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कैसी इज्जतें देता है, हुकूमत देता है, सल्तनत देता है, इज्जत देता है। या जमींदार लोग तो मर गए, की कब्र पे जानवर चल रहा है, अजमेर मोहल्ला की कब्र पे सालाना करोड़ों हाजिरी हो रही है, गौसे आजम की कब्र अनबर पे सालाना करोड़ों की हाजिरी हो रही है, महबूब इलाही की मज़ारे पे की कब्र अनवर पे रोजाना 10 से 20 हजार लोग और सालाना करोड़ों लोगों की हाजिरी हो रही है। जो फकीर जिंदगी में सूखी रोटी खाता रहा, जो एक खानका में बैठकर लंगर चलाता रहा, महवे इबादत रहा, न जमींदारी उन्होंने इख्तियार की, न दुनिया की दौलत की हवस की, मगर आज 500,000 साल के बाद उनकी कब्र पे 24 घंटे मेला लगा रहता है, सालाना करोड़ों की हाजिरी हो रही है। जमींदारों की कब्र पे जानवर चल रहे हैं। क्यों? मालूम है दुनिया में जीने के 2 तरीके हैं। एक वो तरीका है जो सिर्फ अपने लिए जिया जाता है कि मैं अपना खाऊं पीऊं, मेरा बाल बच्चा खाए पिए, मेरा घर, मेरा बाल बच्चा, मेरी जिंदगी, मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य, मेरा मुस्तकबिल। और जो अपनी इस कीमती दिमाग को सिर्फ बाल बच्चों तक लिमिटेड रखता है, तो उसका हश्र ये होता है कि बच्चे भी उसको भूल जाते हैं, बच्चे भी उसको याद नहीं करते हैं, बच्चे भी मरने के बाद दूसरों को दिखाने के लिए वो 30-40वां करते हैं। अगर मैं 10 बच्चों को नहीं बोलाऊं तो समाज वाला क्या बोलेगा कि बाप मर गया 40वां तक नहीं किया, बाप मर गया 30 तक नहीं किया। किस बच्चे के दिल में मोहब्बत है? क्योंकि बाप के मरने के
کے بعد ان کی قبر پہ روزانہ رات میں جا کے دعا کرے رو رو کر کے، اے اللہ میرے اس غریب باپ کو بخش دے جس نے مجھے دولت تو نہیں دی، ایمان اور اچھے عمل کی دولت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں کہ لاکھوں میں کوئی بچہ ہوگا دیندار جو رات کے سناٹے میں تنہا باپ کی قبر پہ جاتا ہوگا۔ یہاں تو وہ لوگ ہیں کروڑوں جس کو باپ کی قبر پہ جانے کا خیال تک نہیں آتا۔ کیوں خیال آئے گا؟ کیونکہ مرنے والا باپ وہ ساری زندگی بچہ بچہ کرتا رہا، میرا بچہ پڑھے گا لکھے گا، ڈی ایم بنے گا، ایس پی بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، داروغہ بنے گا، جج بنے گا، ایڈوکیٹ بنے گا، مالدار بنے گا، صرف بچہ بچہ بچہ۔ اس بچے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، اس بچے کے لیے نماز چھوڑنی پڑے، اس بچوں کے لیے سعودی عرب میں اونٹ چرانا پڑے، ان بچوں کے لیے بمبئی میں ریڑھی چلانا پڑے، ان بچوں کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا پڑے، ان بچوں کے لیے حج فرض ہوا تھا 25 سال پہلے مگر دیر کرتا رہا، یہ کام کر لیں تب جائیں گے، وہ کام کر لیں تب جائیں گے، بیٹی کی شادی کروا لیں تب جائیں گے، 25 سال ہو گئے مر گیا مردود، حج بھی نہیں کر پایا، جبکہ حج 25 سال پہلے فرض ہوا تھا۔ اسے تو سب سے پہلے فرض ادا کرنا چاہیے تھا تاکہ حج کے صدقے میں بچہ اور بچے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی۔ کون سی دعا ہے جو وہاں کعبہ کے پاس قبول نہیں ہوتی ہے؟ باب کعبہ پہ دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ ملتزم کے پاس دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ مقام مستجاب میں دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ مستجاب خانہ کعبہ کی پچھلی دیوار میں دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ میزاب رحمت کے پیچھے دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ حتیم میں دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ وہ جگہ جہاں جبریل امین کا مصلی بچتا تھا مقام حجورہ، وہاں دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ اور کہتے ہیں علامہ جزری روضہ رسول جو جان ایمان اصل ایمان روح ایمان ہے، وہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں دعا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حج کے بہانے ان جگہوں کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں جو جگہیں مقام مستجاب ہیں، مگر اسی لیے لیٹ کرتا ہے، بیٹے کی شادی کر لیں تب حج کو جائیں گے، یہ مکان بنا لیں تب حج کو جائیں گے، وہ دکان فنش کر لیں تب حج کو جائیں گے، مر جاتا ہے مردود، مگر حج نصیب نہیں ہوتا ہے چونکہ ڈیلے کرنے کی سزا اس کو ملتی۔ حضور نے کہا تھا ارادہ ہو حج کرنے کی، جب حج فرض ہو تو فوری حج کر لے، ہو سکتا ہے کہ کل تیری صحت رہے گی مگر مال نہیں رہے گا تو کیسے حج کو جائے گا؟ ہو سکتا ہے مال رہے مگر صحت نہیں رہے تو کیسے حج کو جائے گا؟ بے شمار لوگوں کے پاس مال ہے مگر اس کو وہ اپاہج ہو گیا، اس کو لقوہ کی بیماری ہو گئی، وہ فالج زدہ ہو گیا، نہیں جا پاتا، وہ دوسروں سے حج بدل کروایا۔ اس لیے حضور نے کہا تھا کہ حج کا ارادہ ہو جلدی کر، ورنہ مال ہے کل مال نہیں رہے گا، اور مال رہے گا صحت نہیں رہے گی، صحت رہے گی مال نہیں رہے گا، فوری کر لے۔ یہاں صرف بچوں کی خاطر یہ سارا جہنم مول لیتا ہے، بچوں کی خاطر جھوٹ کیوں بولتے؟ بچوں کی خاطر نماز پنجگانہ کیوں نہیں پڑھتی؟ کیا کرے؟ ٹائم نہیں ملتا، دکان سے فرصت نہیں ملتی، کیا کروں؟ نوکری ہے، ملازمت میں فرصت نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ نوکری کرنا حرام قطعی ہے جس نوکری میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ بھی بے نمازی ہی ہے، یعنی اس کا بھی شمار بے نمازیوں میں ہوگا جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے بیٹھا رہا، نماز چھوڑ دیا۔ اس لیے وہ لوگ جو جلسے کی تیاری میں، عرس کی تیاری میں، چادر کاغذ سندر کی تیاری میں، بیٹے کی بارات کی تیاری میں، بیٹی کی بارات کے نکاح کی تیاری میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ یقین رکھے کہ شادی ضروری نہیں ہے، نماز ضروری ہے۔ وہ یقین جانے کہ نماز اس کی عبادت ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اسے چھوڑ کر کوئی شادی خوشی کا موقع نہیں دے گی، وہ شادی بربادی کا ذریعہ ہو جائے گی جس شادی کو نماز چھوڑ کر کے کیے جائے۔ اسے چاہے بیٹے کا جنازہ گھر سے نکلے تو بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے، چاہے بیٹی کی بارات آئے تو بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، نہ دنیا کا کوئی بزنس نہ دنیا کا کوئی انگیجمنٹ اسے اللہ کے ذکر سے روک پاتا ہے۔ جنازہ نکلے تو بھی نماز پڑھی جاتی ہے، بارات آئے تو بھی نماز پڑھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں جینے کا دو ہی طریقہ ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو صرف بال بچہ کرتے رہتے ہیں، یعنی بچوں کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، مکان بنانا ہے، 5 بیٹے ہیں تو 5 گھر دینا ہے، 5 بیٹے ہیں تو 5 بیگھہ زمین سب کو دینا ہے، 5 بیٹے ہیں تو 5 دکان سب کو دینا ہے۔ میں کہتا ہوں بدتمیز پہلے اپنے بیٹے کو زندگی دے دے کہ میرا بچہ 70 سال دنیا میں زندہ رہے گا، اس کے بعد ان کے گھر کی فکر کرنا، اس کے بعد ان کے مکان کی فکر کرنا، ورنہ بہت سارے بچے ڈاکٹر بن کر امریکہ سے آتے ہیں
और पैसा कमाने का वक्त आ गया, हॉस्पिटल में बैठा, मर्ज पीलिया का हुआ, यहाँ तक कि अचानक अटैक आया, मर गया। बाप का सारा सपना चूर चूर होकर रह गया, उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। हजारों बच्चे हैं जो जिसको सर्विस के लिए ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिला और वह ज्वाइन करने जा रहा, रास्ते में एक्सीडेंट किया, वो मर गया। बहुत ख्वाब है डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना और बच्चों को 5 की मकान देना। बंबई में 5 बच्चा है तो 5 फैक्ट्री बना के सबको दे देना, चाहे उसके बनाने में दाढ़ी मुनवानी पड़े, नमाज छोड़नी पड़े, जोकरों की जिंदगी गुजारनी पड़े, रात भर सजदे का ख्याल तक ना आए, रमजान के दिनों में भी जानवरों की तरह खटते रहे, काम करते रहे, ताकि बच्चों को 5 बच्चे हैं 5 फैक्ट्री देनी है। न तिलावत का, न तरावी का, न रोजे इस्तिगफार का, न दुरूद का, न कलमा पढ़ने का कोई ख्याल तक आता। सिर्फ हवस है पैसे की, 5 बच्चे हैं 5 घर देना है, 5 दुकान देनी है। तो जो नमाज छोड़ेगा बच्चों की खातिर, जो नमाज छोड़ेगा बच्चों की खातिर, जो झूठ बोलेगा बच्चों की खातिर, जो अल्लाह को नाराज करेगा बच्चों की खातिर, जो 50 लाख रुपए रिश्वत देके नौकरी तो हराम काम करके नौकरी की बुनियाद रखेगा ताकि 1 लाख महीना कमाए के बच्चों को घर मकान बना के डॉक्टर इंजीनियर बनाए। ये भूल गया कि रिश्वत लेना और देना दोनों हराम है, और हराम करके नौकरी लेना और उस पैसे से बाल बच्चों को पालना और उन सारे बाल बच्चों के दिमाग को दुनियादाराना बना देना, उन सबों को जहन्नम का रास्ता दिखला देना। ये कहां की अक्लमंदी है? जो बाप अपने बच्चों के लिए सिर्फ जीता है, उनके घर मकान के बारे में सोचता है, ये कानून कुदरत है कि उन्हीं का बच्चा उस बाप को भूल जाता है, उस बाप को भूल जाता है। जो चाहरू कोई 30 के बाद भूल जाता है, कोई 40वां के बाद भूल जाता है, कोई बरसी के बाद भूल जाता कोई मेरा बाप था, वो अपना फर्ज अदा किया, चला गया, ये जमीन मेरी है। अब ये 5 बच्चे फैक्ट्री के बांटने में एक दूसरे को मारते हैं, ज़बह करते हैं। नहीं सुना ये जलील सी दुनिया कितने घर को उजाड़ दिया। अब द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में खबर छपी थी कि बंबई में चिड्ढा ब्रदर्स हैं, जिस तरह अंबानी, अडानी, मुकेश, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल की कहानी है, उसी तरह चिड्ढा ब्रदर थे दिल्ली में, जिनके पास खरबों की दौलतें थी। 2 ही भाई थे, वह दोनों भाई बहुत दिनों तक साथ रहे, फैक्ट्री चलती रही। द टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी खबर छपी कि दोनों भाई एक टेबल पर बैठकर अपनी जायदाद को बांटने के लिए एक जगह बैठे थे कि बहुत दिन साथ रहे, अब हमारे बाल बच्चे हो गए, अब हम सबों को अलग हो जाना चाहिए, जितनी प्रॉपर्टी है आपस में डिवाइड कर ले। उन दोनों ने आपस में बैठकर, उनके पास 10, 20, 50 नौकर गुलाम चलते थे, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रहते थे। अंबानी, अडानी की तरह वो दौलतमंद था, उनके पास लाइसेंस वाला रिवॉल्वर हमेशा रहता था और गनर उनके पास रहते थे, इतने पैसे वाले लोग थे। गवर्नमेंट की निगाह में उसकी हैसियत थी, करोड़ों में वो टैक्स गवर्नमेंट को देता था, इसलिए गवर्नमेंट उसके मफाद को मद्देनजर रखते हुए अपने पार्लियामेंट और असेंबली में बिल पास करती थी। इतनी पहुंच वाले लोग थे। लेकिन जब दोनों टेबल पर बैठकर प्रॉपर्टी डिवाइड करने के लिए बैठे तो प्रॉपर्टी ये हमारी वो तुम्हारी ठीक है, ये जमीन मेरी वो जमीन तुम्हारी ठीक है, ये घर मेरा वो घर तुम्हारा ठीक है। एक प्रॉपर्टी में दोनों बसीद हो गए कि मेरी तो ये मेरी। छोटा बोला ये मेरा होगा, बड़ा बोला, छोटा बोला फैक्ट्री मेरी होगी, बड़ा बोला फैक्ट्री मेरी होगी। दोनों जिद पे अड़ गए। बड़ा बोला मैं बड़ा भाई हूं, मैंने मेहनतें की अपने बाप के साथ में, इसलिए मुझको फैक्ट्री मिलनी चाहिए, मैंने इसको आबाद किया है। छोटा बोला मैं छोटा भाई छोटा हूं, मेरे बाप का प्यार मेरे साथ है, छोटों को नवाजना चाहिए, ये बड़ी फैक्ट्री हमारी है। जबकि दोनों कुर्बानी दे देता, छोटा कहता हाँ भाईया तुम ले लो, या बड़ा भाई बोलता छोटे को हाँ तुम ले लो, खरबपति होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी दौलतें उसके पास थी। उस फैक्ट्री के अलावा बेशुमार दौलतें थी। लेकिन ये दुनिया जलील है और ये दुनिया कितनों को खा चुकी है, यह दुनिया किस कदर लोग घरों को उजाड़ चुकी है, यह दुनिया कातिल डाइन शौहर कुश है। ये आला हजरत कहते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या लल जाना, दुनिया देखी हाली है। क्यों इस मुर्दार पे लल जाता है? क्यों नमाजें छोड़ के दुकान खोलता है? क्यों नमाजें छोड़ के खेती बाड़ी करता है? क्यों नमाजें छोड़ के फैक्ट्री चलाता है? फैक्ट्री पे पेशाब पाखाना कर दे मगर नमाज मत छोड़, अपनी खेती को छोड़ दे मगर नमाज मत छोड़। इसी की नमाज उस रब की इबादत है जो रोजी देने वाला है। रज़ाक को छोड़ के कोई जरिया रिज़्क़ बरकत नहीं लाएगा। दिमाग में ये बात सेट हो गई है कि मैं अगर मस्जिद में जाऊंगा तो ग्राहक वापस हो जाएगा, इसीलिए अल्लाह पैसे दे के तापा रहा है, मकान
बनने के बाद चेहरा सूख रहा है, फैक्ट्री बनने के बाद बच्चा पागल हो रहा है, जमीन खरीदने के बाद आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है, एक दर्जन बीमारियां हैं, बीवी बीमार, बेटी बीमार, माँ बीमार, बेटा बीमार, खुद बीमार, एक दर्जन बीमारी, करोड़ों रुपए बीमारी में खर्च हो गए। यहाँ ज़कात के 5 लाख नहीं निकाला, वहां बीमारी में 5 करोड़ खर्च हो गए। दौलतों के अंबार पे बैठा है तो मस्त रहना चाहिए, चेहरा गुलाब की तरह खिलना चाहिए, लेकिन तुमने मस्जिद के इमाम को देखा 5000 कमाने वाला, उनका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। जुमा के दिन जब वो मिंबर पे चल के खिताब करता है, ऐसा लगता है जैसे कोई राजा है प्रजा को खिताब कर रहा है, कोई फील्ड मार्शल है जो अपनी फौज और आर्मी को ललकार रहा है, अमामा सर पे हाथ में असा, ऐसा लगता है जैसे कोई फील्ड मार्शल हो, वो अपनी फौज को ललकार रहा हो। एडवोकेट नीचे है, बैरिस्टर नीचे है, डीएम नीचे है, दारोगा नीचे है, सारे लोग नीचे है। एक गरीब का बच्चा जो आलिम बन के आया है वह मेंबर पे चढ़ा हुआ है। ये हदीस रसूल की खिदमत का इनाम है कि वह सरदार बन के मेंबर पे चढ़ा है। एडवोकेट और लायर नीचे है ताकि दुनिया जान ले कि मेंबर दौलतों से नहीं मिलती, मेंबर को कुरान हदीस के इल्म की माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लगते। आज मस्जिदें उजड़ गई सिर्फ दौलत की मोहब्बत में, आज खानकाहें उजड़ गई दौलत की मोहब्बत में। पहले खानकाहों में अल्लाह के नेक बंदे आते थे, बादशाह त्याग के आते थे। नहीं सुना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला हो, वह सिमना के बादशाह थे, मगर दिमाग में जब जन्नत का जुनून चढ़ा तो बादशाह को ठुकरा दी और खानका में फकीर करने आ गए। मुजफ्फर बल्ख के बादशाह थे, जब दिमाग में जन्नत का जुनून चढ़ा और इस दुनिया को जान गए दुनिया जलील है, यह दुनिया आज है कल खा जाएगी, अब बड़ों को खा चुकी है, यह दुनिया डाइन है, ये शहद दिखा के जहर पिलाती है, इसे जन्नत दिखा के जहन्नम ले जाती है। इस दुनिया पे क्या ललचाना, क्या खरीदना। बादशाह ठुकरा दी मुजफ्फर बल्खी, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, इब्राहिम अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वह बादशाह बल्ख थे, बादशाह को ठोकर मार दी क्योंकि वह फैक्ट को जान गए, वह रियलिटी को जान गए, वह सच्चाई को जान गए कि ये क्या है, ये जहर है जिस पर शानदार चादर ओढ़ा के मुझको हलवा बना के दिया जा रहा है। यह दुनिया मुझे लूट लेगी, यह दुनिया मुझे जहन्नमी बना देगी, यह दुनिया कभी आज मेरे पास है कल उसके पास है, सुबह यहाँ शाम वहाँ है, ये हरजाई है, कभी इसके पास कभी उसके पास। ये एक तो तवाई जो चेहरे को मेकअप करने के बाद ग्राहक को लुभाती है, और जो चेहरा देखा वो तबाह बर्बाद हो गया। ये दुनिया उसी तरह है, कभी इनके पास कभी उनके पास, कभी उनके पास कभी उनके पास। हुजूर ने कहा कि दुनिया को मैंने नीचा दिखला दिया। सरकार दो फरमाते मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया, अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर दिया। तो यहाँ तक कि अल्लाह ने कहा था कि हबीब तुम चाहो मैं उहद के पहाड़ को सोना बना के तेरे पीछे चला दूं, अरब के रेगिस्तान को सोना बना दूं। हुजूर का नहीं, मेरे मालिक मेरे महबूब एक दिन का खाना दे ताकि मैं खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करो, और एक दिन भूखा रहो ताकि मैं सब्र किया करूं। यही मुस्तफा ने पैगाम दिया, जब अल्लाह रोजी दे तो शुक्र अदा कर, और अल्लाह आजमाइश में डालते तो सब्र किया करना। मेरी जिंदगी सब्र और शुक्र के बीच में रहना चाहिए, मगर लालच ने मुझको तबाह किया, बाल बच्चों की मोहब्बत ने मुझको तबाह किया। ये इस मुर्दार पे हम मरीज गए, हमें फैक्ट्री के बनाने के शौक ने मुझको तबाह बर्बाद किया। जो नमाजें छोड़ी बच्चों के लिए, जो रोजा छोड़ा बच्चों के लिए, जो तरावी छोड़ी बच्चों के लिए, जो हराम और हलाल का फर्क मिटा दिया बच्चों की खातिर। ये हराम का 1 करोड़ और हलाल का 1 रुपया, वह दोनों को जब वजन किया जाए तो हलाल का 1 हराम के करोड़ों पे भारी हो जाएगा। इसलिए नमाजें पढ़ा करके, नमाजें पढ़ के 10,000 कमाने वाला और नमाजें छोड़ के 10 करोड़ कमाने वालों से 1000 गुना बेहतर है। यहाँ मस्त इबादत भी है और फिर जन्नत का रास्ता भी है। वह इबादत छोड़कर 10 करोड़ कमा ले। हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि हराम का 1 करोड़, हलाल का 1 रुपया, ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा सकता। हलाल का 1 हराम के करोड़ों पे भारी है। ये बात जब दिमाग में बैठ जाए, कभी उस मुर्दार को नहीं खाएगा, कभी ये जलील सी दुनिया पे नहीं भेजेगा। नमाजें छोड़ दी, रमजान का दिन इबादत करता, दिन भर रोजा रखते, रात भर कुरान पढ़ते, तहज्जुद की नमाज पढ़ते, 1000 बार कलमा पढ़ते, 1000 बार दुरूद पढ़ते, 1000 बार इस्तिग़फ़ार रोजाना करते। इबादत का महीना है, 24 घंटे रहमतों की बारिश होती है। 11 महीने तक कमाया, पेट नहीं भरा तो 1 महीने कमा के क्या पेट भरेगा। फिर भी मस्जिदें वीरान है, बाहर बैठ के बात कर रहे लोग, इमाम साहब रुकू में जाते हैं तो उसके बाद ये शामिल हो जाता है। रमजान का महीना नेक बनाने वाला महीना, घमंड निकालने वाला
महीना, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालने वाला महीना, भूखा रखकर प्यासा रखकर बीवी छोड़वा के 15-15, 16-16 घंटे। इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम यही चाहता है कि दाना हलाल था मगर अभी तेरे लिए हराम है, सुबह शादी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। या बीवी तेरे निकाह में है, ये तेरे लिए हलाल है मगर अल्लाह की खातिर तो मैं सुबह शादी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये बीवी तेरे लिए हराम हो गई, इससे जमा ही करना है। ये धपानी हलाल है मगर 5:10 से पहले हलाल, 5:10 के बाद ये हराम, शाम में 6:50 तक ये हराम, 6:50 के बाद ये हलाल। इसीलिए कि एक एक मिनट कीमती है, तुम्हें मालूम हो जाए। और जो चीज हलाल है रब की खातिर मैंने उसको हराम बना लिया है, तो हलाल दाना पानी बीवी को खुदा की खातिर तुमने इतने फिक्सेड टाइम तक हराम बना लिया और 1 महीने तक तुमने प्रैक्टिस की। क्यों? कुरान कहता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, गुनाहों से बचने वाला बन जाओ। अभी दाना हलाल था रब की खातिर बच गए, बीवी हलाल थी रब की खातिर रुक गए। तो जब हलाल से रोकवा के अल्लाह हमें प्रैक्टिस करवाना चाहता है, तो जिस रब के कहने से तूने दाना छोड़ा है उसी रब के कहने से झूठ छोड़ दे, के कहने से चुगलखोरी छोड़ दे, उसी रब के कहने से तमाम हराम काम को छोड़ दे। यहाँ दुनिया की मोहब्बत के हराम की कीचड़ में लथपथ करवा दिया। रोजे से कोई सबक नहीं सीखा। रमजान के दिनों में झूठ है, रमजान के दिनों में ग़ीबत है, रमजान तो नेकी का महीना, ज़बान पे खामोशी का ताला लगाने का महीना, आँख की हिफाजत का महीना। अजनबी औरतों को मत देख, टेलीविजन पे न्यूज पढ़ने वाली के नीम बरहना चेहरे को मत देख, व्हाट्सएप और यूट्यूब का इस्तेमाल मत कर, गंदी चीजों को मत देख। आँख का रोजा, जबान का रोजा ग़ीबत मत कर, कान का रोजा गाना मत सुन, गंदी बातें मत सुन, गाली मत सुन। यानी प्योरली सर से लेके पांव तक, अंदर से लेके बाहर तक 1 महीना इबादत के लिए डिवोट कर दे। 1 महीना अगर तुमने अपने कान जबान आंख को गुनाहों से बचाया तो अल्लाह की रहमतें झूम के बरसेंगी। साल के 12 महीने तुम्हें अल्लाह गुनाहों से सेव कर देगा, गुनाहों से बचा देगा। ये रमजान का महीना तकवा का महीना, गुनाहों से बचने की प्रैक्टिस करवाने वाला महीना, ये गुनाहों से बचने की ट्रेनिंग करने वाला महीना। एक एक मिनट कीमती है, एक मिनट पहले दाना हलाल, 1 मिनट के बाद हराम, ताकि बंदा जान जाए कि हमें बर्बाद टाइम चौक चौराहे पे नहीं करना है, हमें दूसरों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज यहूदी इस पॉइंट को पकड़ गए, एक एक मिनट को कीमती समझ के वो दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट बन गया। हवाई जहाज यहूदी दे रहा है, माइक्रोफोन यहूदी दे रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप यहूदी दे रहा है, साइकिल हवाई जहाज से लेकर ट्रेन 3 व्हीलर 4 व्हीलर का फार्मूला यहूदी दे रहा है। हमारे घर की वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, ये सारी चीजें यहूदी दे रहे हैं। ये यहूदी नसरानी एक एक मिनट को कीमती समझते हैं, एक एक मिनट को कीमती समझते, 1 मिनट बर्बाद नहीं करते। चौक चौराहे पे यहूदी के बच्चे नहीं मिलेंगे, उनकी बेटियां बाजार में घूमती नहीं मिलेंगी। एक एक मिनट उनके नजदीक कीमती, दिमाग जलाते हैं, वो रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो डिस्कवर करते हैं, वो गौर व फिक्र करते हैं। जो सारा पैगाम कुरान में दिया, हर चैप्टर में है तवस्सुम की बातें, तफक्कुर की बातें, तदब्बुर की बातें, गौर व फिक्र की बातें। कि तुम नहीं देखते आसमान को, आसमान कैसे बनाया गया। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ़ सुतिहत। अल्लाह कहता है they don't see how the camel is created, how the sky is raised, how the earth is spread। वो गौर क्यों नहीं करता कि ऊंट कैसे पैदा हुआ, जमीन कैसे पानी पे बिछा दी गई, आसमान बगैर खंबे के कैसे खड़ा है, ये पहाड़ को मीख बना के जमीन में कैसे गाड़ दिया गया ताकि जमीन हिली नहीं। कुरान का हर चैप्टर गौर व फिक्र की बात कर रहा है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इन आयतों में अहले फिक्र के लिए निशानियां हैं। हमने दुनिया को फिक्र की बात बताई, हमने डिस्कवर की बात बताई, हमने इन्वेस्टिगेट की बात बताई, हमने दुनिया को तफक्कुर की बात बताई। ये पॉइंट हमसे यहूदी लेकर साइंटिस्ट बन गया, ये पॉइंट हमसे यहूदी लेकर वैज्ञानिक बन गया, हमसे यहूदी लेकर हवाई जहाज दिया और हम गुटखा खोर बन गए, हम सिगरेट नोश बन गए, हम फजूल बातें करने वाले बन गए। हमारे बच्चों की पहचान है जो जोकर की तरह बाल बना ले, हमारे बच्चों की पहचान है जो औरतों की तरह चूटीधारी बन जाए, हमारे बच्चों की पहचान है जो फटा हुआ जींस पहने, हमारे बच्चों की पहचान है जो कान में वायर ठूस के गाना सुने, हमारे बच्चों की पहचान है जो 24 घंटे गुटखा खाए। अब एक हिंदू पंडित ने अभी एक रिसर्च बताया था कि गुटखा में हैदराबाद में किस तरह पखाना मिलाया जाता है, जहां म्यूनिसिपैलिटी का सारा पखाना जाता है, एक केमिकल डाल के सुखाया जाता है, उसी को बोरे में बांध के कानपुर भेजा जाता है
और कानपुर में गुटखा फैक्ट्री में वो पाखाने में सुपारी का कुछ हिस्सा मिला करके केमिकल डाल करके पुड़िया में पैक किया जाता है, यानी वो पाखाना है जिसके खाने के बाद मुंह में पाखाने जैसी बदबू, बेसिन में पाखाने जैसी बदबू, मदरसा की दीवार के कोने में पाखाने जैसी बदबू, और साहब रेलवे स्टेशन पे बेसिन में पाखाने जैसी बदबू। कोई प्रोफेसर खाता है, कोई डीएम खाता है, कोई एसपी खाता, कोई खाता भी हो तो कोई नीचे घराने का बच्चा खाता होगा, कोई जेंटल नहीं खाता है, कोई शरीफ नहीं खाता है। एक बार हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट था, उन्होंने खैनी खाया तो सारे सदन में बेइज्जती का सामना करना पड़ा और सबों ने कहा कि फला इलाके से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश और बिहार का वो इलाका जो गोरखपुर का, देवरिया का, जो सिवान छपरा से मिला जो बिहार का इलाका है, इन इलाके वाले को मेरठ, मलियाना और मुरादाबाद वाले लोग उसको देहाती समझते हैं, यहाँ गोंगा समझते हैं, जिनको बोलना तक नहीं आता, उर्दू तक नहीं आते, खैनी बीड़ी सिगरेट से फुर्सत नहीं है। अगर सीने में गैरत मौजूद है तो आज से गुटखा छोड़ दे, आज से खैनी छोड़ दे, आज से बीड़ी छोड़ दे, आज से सिगरेट छोड़ दे। फजूल चीजों में क्या दाम लगाने का, जो 1 घंटा तक तुम गुटखा खा के मुंह करेगा, बात सलाम का जवाब तक नहीं देगा, उतनी देर अगर 100 बार दरूद पढ़ लिया तो लाखों नेक के नाम अमान में लिखी चली। मैंने देखा, मैंने बनारस के एक मुफ्ती साहब से कहा, आप पान क्यों नहीं खाते? पान खाना बुजुर्गों की सुन्नत है। कहा बुजुर्गान दिन इस तरह पान नहीं खाते थे कि चबाया, गटर गटर किया और फिर की फेंका, फिर दूसरा खाया। मुफ्ती आजम हिंद एक पान खाते थे, अगर 4 घंटे के बाद भी वह पान निकालते थे तो पान बिल्कुल हरा रहता था। यानी एक तरफ दबा दिया बस, शर्म शहले सुन्नत भी खाते थे, एक तरफ दबा दिया आला हजरत भी खाते थे, एक तरफ दबा दिया 4 घंटे के बाद पान हरा निकलता था। लेकिन आज पूरा चबा चबा के फिर के फेंकना और निगल जाना, पूरा टाइम बर्बाद करना, मुंह को थूक से भर देना। वह लोग नेक लोग थे, इधर पान दबा रहता था, इधर जबान से कलमा का विर्द होता रहता था, दुरूद का विर्द होता रहता था। तो जो लाखों लेके मुफ्त में कमा सकते हो, तुम बाइक चलाता है, यहां से बाइक लेके तुम जाता है, गोंडा जाता है, बलरामपुर जाता है, जबान पे गुटखा खा के जाता है, फिरकी फेंकता है, गिरता है, मर जाता है मोटरसाइकिल से। तुम फिरकी फेंकता है, तेरा सारा कपड़ा खराब हो जाता है। तुम कार का ड्राइवर है, खाता है गुटखा, खिड़की खोल के तुम फेंकता है, कार खराब हो जाती है, और अपना गेट खोल के तुम फेंकता है, कभी कभी ड्राइवर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। क्यों फजूल काम करते? अगर मर गया उसी हालत में चप गया तो क्या होगा? कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, मुंह में थूक भरा रहेगा, मलकुल मौत आएंगे, बोलेगा 1 मिनट मोहलत दे, थूक फेंके और कलमा पढ़ के मर जाए, नहीं देगा फरिश्ता मोहलत। इसी बुजुर्गों ने कहा कि जब मौत सस्ती है, कहीं भी आ सकती है, तो हर वक्त मौत के तैयार रहा। गाड़ी पे हाथ पे स्ट्रिंग रहे, जबान पे कलमा रहे। अगर मौत आ गई तो जबान पे कलमा रहेगा, जन्नती ऐसी मौत। मौत ऐसे ही बहुत ज्यादा आ रही है, सस्ती हो गई है मौत। नहीं देखा तुमने बरेली इलाके में अभी शादी की पार्टी में लोग नाच रहे थे और नाचते नाचते एक डांसर चक्कर आया, वहीं गिरा, स्पॉट डेथ हो गया। नहीं देखा तुमने इलाहाबाद इलाके में एक रंडी नाच रही थी शादी के मौके पर, क्योंकि मुसलमान के बच्चों का दिमाग ऐसा खराब हुआ। अभी 10 दिन पहले एक सुन्नी नौजवान फहीम नाम का मुरादाबाद इलाके में, उन्होंने मुझको बुलाया, तो बड़ी तमन्ना थी 4-5 साल पहले से कि हजरत को बुलाएंगे, अपनी शादी में तकरीर करवाएंगे। उनके छोकरे दोस्त सब कहने लगे कि तुमने इतना खर्चा करके जलसा करवाया, वो तो 10,000 रुपए में रंडी आ जाती, नाचती, हमारा काम बन गया होता। यानी का दोस्त बोलने गया 10,000 में काम बन जाता, तुमने इतने 1000 रुपए खर्च करके तुम जलसा करवाया, क्या फायदा मिला? ये मुसलमान का बच्चा, हिंदू नहीं बोल रहा, वो क्रिश्चियन मुसलमान का बच्चा बोल रहा है कि रंडी को नचवा देते 10,000 में, 10,000 ही में काम हो गया होता, और तुम्हें जलसा करवाया, शायर बुलाया, खतीब बुलाया, पीर बुलाया, मौलाना बुलाया, टेंट लगवाया, ये क्या किया? मैंने कहा कि कमीनों, कुत्तों, चुन्नी भर पानी में डूब के मर जाओ। ये सारे लोग तो नाच ही रहे हैं, सारे कुफार मुशरिकीन तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तुम तो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला है, तुम तो अपनी शादी को खुराफात से पाक रख। ये नौजवान ने पूरे हिंदुस्तान में एक नमूना कायम करके बता दिया है कि मैं भी तो नौजवान हूँ, मैं वो शादी चाहता जो शादी नाच से पाक हो, डीजे से पाक हो, बैंड बाजा से पाक हो, ताकि दुनिया के, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान जो नौजवान वो जान ले कि हमारे लिए मॉडल कोई हिंदू का कल्चर नहीं है, मेरे लिए मॉडल मुस्तफा का कल्चर है, हमारे का कल्चर है। शर्म कर, डूब कर चुल्लू में पानी मर जा। वो बदतमीज पे हया जो मौलवी को मारा कि डीजे वाले जनाजे हम नहीं जाएंगे, उन सब जलीलों अल्लाह जलील कर दे, उसे रुसवा कर दे। उन खबीसों मर्दूदों को अल्लाह तबाह हो बर्बाद कर दे, जो हक पर चलने वालों को मारता है, जो हक बोलने वालों को पीटता है। मालूम का अल्लाह है इज्जत देने वाला, जलील करने वाला। एक मिनट कीमती है मुसलमान, 1 मिनट पहले बीवी हराम, 1 मिनट के बाद हलाल, 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट
के बाद हराम, 5:10 में सहरी का आखिरी टाइम है तो 10 मिनट से पहले बीवी हलाल, 10 मिनट के बाद वो हराम, खाना हलाल, अब 10 मिनट के 1 मिनट के बाद वो हराम। क्यों? एक मिनट कीमती है, पंक्चुअल बन जा। पंक्चुअलिटी ये वक्त की जो कदर करेगा वक्त उसे इज्जत अता करेगा और दुनिया में उसे सुर्खियों बनाएगा। यहूदियों ने वक्त की कदर की, हवाई जहाज दिया, वक्त की कदर की, माइक्रोफोन दिया, वक्त की कदर की, उन्होंने प्लेन दिया। इस कौम मुस्लिम चौक चौराहे पे बैठने की अल्लाह ने जिंदगी नहीं दी है, भाषण देने नहीं दिया है कि चौक पे बैठे और 2024 में क्या होगा, पंडित जी आएंगे कि मोदी जी आएंगे। 5 घंटे से तबसरा हो रहा, लगता है गांधी जी की औलाद है, लगता है कि अंबेडकर जी की औलाद है। मस्जिदों में नमाज़े पंजगाना के लिए मस्जिद बुला के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पंक्चुअल बना दिया है। नमाज फज्र का टाइम मुतय्यन है, ज़ोहर का टाइम फिक्सड है। हम 11 बजे ज़ोहर नहीं पढ़ सकते, 9 बजे नहीं पढ़ सकते, टाइम पे नमाज फर्ज है। हम फजर की नमाज सूरज उगने के बाद कज़ा पढ़ सकते हैं, अदा नहीं पढ़ सकते। ईशा का टाइम मगरिब खत्म होने के बाद होता है, मगरिब के टाइम हम नहीं पढ़ सकते। यानी नमाज का टाइम, कुर्बानी का टाइम, हज का टाइम। 12 महीने कोई अरफात जाके बैठ जाए हज नहीं होगा, बल्कि हज तो जिलहिज्जा की 9 तारीख को हालत एहराम में जो मैदान अरफात में गुजरेगा वो हाजी होगा। यहाँ वक्त फिक्सेड है, रोजे में टाइम फिक्स है, हज का टाइम फिक्स है, कुर्बानी का टाइम फिक्स है, नमाज का टाइम फिक्स है, सूरज और चांद के निकलने डूबने का टाइम फिक्स है। जिसके कुरान ने टाइम पे इतना जोर दिया हो वो टाइम को बर्बाद करने वाला, सोना है 2 बजे तक, उठना है 10 बजे तक, यानी काफिर को भी पीछे छोड़ दिया। काफिर के बच्चे तो आज 4 बजे उठकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं ताकि हमें सेहत मिले, और मेरे बच्चे सेहत का खून कर रहे हैं। रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाना, उसके बाद दिन के 10-11 बजे उठकर उस वक्त नाश्ता करके फिर कारोबार को जाना, यानी उनका लिबास काफिरों जैसा, उनका गुटका काफिरों जैसा, से हेयर स्टाइल काफिरों जैसा, सोने और पढ़ने का स्टाइल काफिरों जैसा। बुजुर्गों ने कहा था कि ईशा पढ़ के जल्दी सो जाओ और सहरी के टाइम में उठ जाना, वो फरिश्तों के आने का टाइम है, जमीन पर उतरने का टाइम है। और हुजूर ने कहा था वइज़ा समिअतुम, जब तुम सुनो मुर्ग की आवाज, फस्अलुल्लाह मिन फज़ली, उस वक्त अल्लाह का फजल मांग चुके दुआ के कबूल होने की घड़ी है। जब फरिश्ता आसमान से जमीन पे आता है, मुर्ग बांग देने लगते हैं, मुर्ग रात पर चुप रहता है, मगर ये कुत्ता रात भर हुल्लड़बाजी करता है, इस गली से उस गली, उस गली से उस गली, उस गली से उस गली। और जहां सहरी का टाइम आया ये कुत्ता बीच सड़क पे सो जाता है, नाले के किनारे सो जाता है, राख के ढेर पे सो जाता है। बुजुर्गों ने कहा कि देख ले तेरा कैरेक्टर कुत्तों से मेल खाता है या फरिश्तों से मेल खाता है। ईशा के बाद जो सो जाए, फजर से पहले जो उठ जाए, उसका काम फरिश्तों से मेल खाता है, उसका काम मुर्ग से मेल खाता है। और जो रात के 2 बजे सोए और दिन के 10 बजे उठे, रहमत का फरिश्ता आया चला गया और रहमत लेके चला गया, ये सोया रहा, महरूम रहा। इनकी मिसाल उन कुत्तों जैसी है जो रात भर हुल्लाबाजी और फरिश्तों के उतरते टाइम में वो सो गया, जूता पहने सो गया, दलान में सो गया, जहां चाहा सो गया। हसरत है उस जिंदगी पे तो इस तरह वक्त को बर्बाद करे, इसे मेरे बच्चे बर्बाद हो गए। ये काफिर मुझको मिटाना चाहता है, ये मुझको तबाह करना चाहता है। मिटा देंगे, भगा देंगे, अफगानिस्तान भगा देंगे, तुम्हें पाकिस्तान भगा देंगे, तुम्हें भगा देंगे। क्यों नहीं बोलेगा ये? मेरी रात काफिरों जैसी, मेरा दिल काफिरों जैसा, मेरी मस्जिद फिरान, इसे काफिरों को हिम्मत हुई कि मैं भगाने की बात कर रहा है। कुरान कहता इज्जत तुम्हारे लिए, हुकूमत तुम्हारे लिए। जिस तरह अल्लाह ने वादा सच्चा करके दिखलाया कि जब अरब के खजूर चूसने वाले, बकरी चराने वाले ने कुरान का हाथ में लेकर कुरान की तबलीग शुरू कर दी, अपना घर बार छोड़ दिया, निकल गए मदीना से, मदीना छोड़ दिया, कुस्तुनतुनिया निकल गए, मदीना छोड़ दिया, स्पेन चले गए। मदीना में रहना अच्छी बात है, मगर उससे अच्छी बात मदीना का पैगाम पहुंचाना है। मदीने में मरना अच्छी बात है, मगर मदीने का पैगाम हिंदुस्तान में पहुंचाते पहुंचाते मर जाना उससे अच्छी बात है। अबू अय्यूब अंसारी मेजबान रसूल थे, उसके घर में रूह मुस्तफा ठहरे, मगर उनकी कब्र है कहाँ? कुस्तुनतुनिया में है। तो मदीने में मुस्तफा का रोजा देखना अच्छी बात है, मगर उससे बड़ी बात है नबी की हदीस इराक में पहुंचा देना, स्पेन में पहुंचा देना। आला हजरत से कहा गया था आप अरब में रह जाओ, यहाँ शादी करवा देते हैं। क्या हिंदुस्तान का क्या होगा अगर वहां वो रह जाते, वही कब्र बकी शरीफ में बन जाती, वो तो जन्नत चले जाते। वे हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों को बेसहारा छोड़कर चले जाते। आज जो करोड़ों मुसलमान
वहाबियों की चपेट में आने से बच गया है। यह एहसान इमाम अहमद रजा खान मुहसिन मानना पड़ेगा, वरना हम भी जी भर के सलाम पढ़ने को हराम कहते, हम भी जी पानी पी पी करके मज़ारात की हाजिरी को हराम कहते। इसलिए मगर आला हजरत का एहसान है, हमें मुस्तफा का आशिक बनाया है, हमें काफिर होने से बचाया है। ये अजमेर का चरस पीने वाला मुजाविर क्या जाने, ये जूत चप्पल चोरी करने वाला क्या जाने, ये औरतों के सर पे हाथ डालने वाला, उनका परस चोरी करने वाला ये क्या जाने रजा किसका नाम है। ये लाखों सलाम पढ़ने पे पाबंदी लगाता है, बदतमीज, रजा उसका नाम है जिसकी वजह से तेरा पेट चल रहा है, तेरा घर चल रहा है, तेरा मकान चल रहा है। ये बता दे खबीस, आज से 100 साल पहले नज्द की आंधी चली थी, वहाबियों ने कहा था कि हिंदू खड़ा बुत पूजता है और ये मुसलमान पड़ा हुआ बुत पूजता है। उन्होंने कहा था मज़ारात की गुम्बद को तोड़ देंगे, इन्हें मज़ार पाक को खदेड़ देंगे, ये कब्र पूजना है, ये सुन्नी मुसलमान कब्र को पूजता है, गैर मुस्लिम खड़ा बुत और ये पड़ा बुत को पूजता है। जहां जहां उसका कब्जा हुआ मज़ारात की हाजिरी बंद हो गई, मज़ारात के सारे रसूमात को मिटा दिए। अगर ये नज्द की आंधी अजमेर पहुंच जाती और ये नजदी कामयाब हो जाते कब्जा करने पर, गुम्बद तोड़ देता, वहां पे कब्जा इन वहाबी का हो जाता। ये बता दे मुजाविर, तेरा मकान कहां से बनता, तेरा घर कहां से बनता, तेरा पेट कहां से चलता, तू चादर और फूल बेच के कैसे अपने बाल बच्चों को पालता। ये बता दे किसने उस आंधी को अजमेर पहुंचने से रोक दिया, किसने उस आंधी की कमर तोड़ दी, किसने उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1000 के करीब किताबें लिखकर वो तरहा रजा ने इन नस्लियों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। वो रजा के नीचे की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार होती है, वार वार से पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती शहरे रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अपने मोहसिनों को याद कर, वो जालिम आज वहां चादर पोशी सलामत है, गुलपोशी सलामत है। एहसान इस सदी में इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का है, जिन्होंने मरासिम अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस से रिसालत करते हुए एक पासबान निगहबान की तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इसे मदीने में मरना कमाल है, मगर दीन की राहों में शहीद हो जाना उससे बड़ा कमाल है। दीन बताते बताते लाखों को मुसलमान बनाना ये उससे बड़ा कमाल है। वो खाना बदोश स्पेन चले गए, अल्लाह ने स्पेन 1000 साल तक के मुसलमान के हवाले कर दिया। वो खाना बदोश ईरान चले गए, ईरान की हुकूमत छीन कर मुसलमान के हवाले कर दिया। मोहम्मद इब्न कासिम 18 साल का अपने चंद साथियों के साथ हिंदुस्तान चले आए, अल्लाह ने 1000 साल तक हिंदुस्तान की जमीन मुस्तफा के गुलामों के हवाले कर दी। तो अल्लाह तो चाहता कभी तू तैयार हो जा, अभी तू मुस्तफा का गुलाम बन जा, काफिरों का कैरेक्टर छोड़ दे, शादी ब्याह काफिराना तौर पर अदा करना छोड़ दे, वो बर्थडे पार्टी में केक काटना नसरानी की तरह वो तू छोड़ दे, अपना लिबास इस्लामी पहन, तू मोहम्मदी बन जा, लिबास मोहम्मदी, शादी ब्याह का कल्चर मोहम्मदी। तू रह गरीब, तू रह झोपड़ी में, तू रह किराए के घर में। किराए के घर में रहना ऐब की बात नहीं है, तू किराए के घर में रह। बहुत सारे बुजुर्गों ने किराए के घर में जिंदगी गुजार दी, बहुत सारे बुजुर्ग जंगलों में खानका बना के उन्होंने टाट के घर में जिंदगी गुजार दी, उन्होंने बांस के घर में जिंदगी गुजार दी। तो ऐब नहीं है मजदूरी करना, ऐब नहीं है कच्चे घर में रहना, ऐब है गुनाह करना, ऐब है नमाज छोड़ना, ऐब है झूठ बोलना। अभी तू मोहम्मदी बन जा, तेरे घर का सारा कल्चर मोहम्मदी हो जाए, फिर देखना वही अल्लाह है जो पहले सल्तनत दिया था, वही अल्लाह तुम्हें आज इज्जत देगा। हिंदुस्तान का है, अमेरिका भी तुम्हारा है, हालैंड भी तुम्हारा है, नॉर्वे भी तुम्हारा है। तू बन जा मुस्तफा का, चाइना जापान भी तुम्हारा। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या अल्लाह हो कलम तेरे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यूरोप का एक दानिश्वर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर पूरे यूरोप महाद्वीप में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। वह जानता है कि इन्वेस्टिगेशन का पैगाम जो कुरान ने दिया है उस पर अमल करके यहूद और नसारा ने साइंस की इमारत खड़ी की है। आज वक्त को 1 मिनट भी बर्बाद न करे, चौक चौराहे पे हमारे बच्चे नजर ना आए, हमारे बच्चों के हाथ में कुरान रहे, हमारे बच्चों के हाथ में हदीस रहे, हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल हर वक्त न रहे, हमारे बच्चे चौक चौराहे पे गुटखा खा के मत घूमे फुआ उल्लू की तरह, बल्कि 1-1 मिनट कीमती समय, 18-18 घंटे पढ़े, 1 घंटा मदरसे में पढ़े, 15 घंटा स्कूल कॉलेज में पढ़े, ताकि उसकी बुट्टी में इस्लाम पिल जाए, वह डीएम बनने
बनने के बाद काफिर न हो जाए, मिनिस्टर बनने के बाद काफिर न हो जाए। हमारी बेटी कुरान हदीस पढ़े और स्कूल कॉलेज में पर्दे में रह के पढ़ाने वाली मौलिमात है तो वो पढ़े, स्कूल कॉलेज में हर्ज नहीं है। यहाँ हर्ज इसीलिए है जहाँ बेपर्दगी हराम है, अजनबी मर्दों के सामने बैठ के पढ़ना उससे हराम है। जहाँ इज्जत के लूटने का अंदेशा हो तो अपनी औरतों को घुट्टी में इस्लाम पिलाए, वरना बेशुमार हमारी बेटियां हैं जो काफिरों के साथ भाग रही है। वो दौलत का क्या मतलब है कि औलाद काफिर हो जाए, वो मकान का क्या मतलब कि औलाद काफिर हो जाए। बच्चे को दीनदारी देना ये हम पर फर्ज है, न कि मकान बना के देना। क़यामत के दिन तुझसे सवाल ना होगा कि तुमने अपने बच्चों को घर क्यों नहीं दिया, अल्लाह की कसम सवाल नहीं होगा। ये सवाल ना होगा तुमने डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, अल्लाह की कसम ये सवाल ना होगा। ये सवाल होगा कि तुमने बच्चों को नमाजी क्यों नहीं बनाया, तुमने अपने बच्चों को नमाज का आदेश क्यों नहीं दिया। हुजूर का हुक्म है मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सनीन, अपने बच्चों को नमाज का आदेश दे जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए। वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो नमाज ना पढ़े उसे मार के नमाजी बना दे। हुजूर ने ये कहा नमाजी बना दे, और हुजूर ने फरमाया है कि तुम मानहला खालिदुल वलदु मिन हलिम अफजल मिन अदबिन हसन, एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे, चाहे खरबों का मकान करोड़ों की गाड़ियां, मुस्तफा कहते अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है, अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। आज अमेरिका के बच्चे जब शराबी जुआरी बनने लगे, अब वहां पढ़वाया जा रहा है कि बच्चों को डिसिप्लिन दीजिए, मकान दुकान देने की हवस मत पालिए, वरना ये बच्चे बर्बाद होंगे तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, बैंक का मैनेजर कौन बनेगा। वहां शराब और ज़िना ने कल्चर को तबाह बर्बाद किया। अब वहां के दानिश्वर है मकान दुकानी, बच्चों को डिसिप्लिन दीजिए, बच्चों को अदब सिखाइए, बच्चों को जीने का तरीका बताइए, कैसे जिए, कैसे मरे, कैसे माल कमाए, कैसे खर्च करें, ये तरीका सिखा दिए। माल देंगे अगर बेढंगों को 50 करोड़ शराब पीने में बर्बाद कर देगा, 50 बीघा जमीन 50 दिन में बेच के खा जाएगा। जिसको मुफ्त की दौलत मिलती है हरामखोरी की लत लग जाती है, जो मेहनत से कमाता है उसको माल का दर्द होता है। जो बाप अपने बच्चों को जमीन छोड़ना चाहते हैं उन बाप से मैं कहता हूं बच्चों को उम्र दे दे, बच्चों को 70 साल की जिंदगी दे दे, उसके बाद जमीन दे रहा। जब तू जिंदगी नहीं दे सकता है तो उसके मकान उसकी जमीन की फिक्र क्यों करता है।